dedicated to teenagers out there who are struggling with peer pressure. Teenage years are the stage in one's life where they have to adjust with transition and change. We all know that none of those are easy, right? We feel the need to fit in, to be popular and adored by our peers. We become a stranger to ourselves. With expectation and aspiration comes pressure. The ugly reality is that peer pressure reaches its greatest intensity at just the age when kids tend to be most insensitive and cruel. So, what do you think? What is peer pressure? But I think so. Peer pressure is such a bad thing which can influence our lifestyle very badly. Actually, a peer pressure is a social pressure from our parents' side, our friend circle, or members present in our social group or social circle. Actually, they force us to adopt certain bad habits, or they force us to take certain bad actions which can affect our which can affect us mentally. So I think so. It's a very big thing. It's a very we should always think twice to take certain action, to take certain important action. Actually, nowadays. I'm saying that parents force their children to take PCM or PCB because they want them to become a doctor or become engineer. But this is not a right way because uh, students have their own should have their own choice because there's their own talent. So we have to give them one chance to come up with their opinion, choose their subject or stream. Today, many of the children I see uh, came up with their problems. They told me that they told me that they are not getting good scores, not getting good marks in their subjects. But when I ask them why you have choose this subject when you have no interest in this, so they say that my parent told me this. I think that this is so big thing that can affect their life because uh, now they have no there's no chance to change their stream, but they are saying that my parents are just want me to become engineer, become a doctor. What can I do now? So I request those children, please don't go with these streams if you are not interested. There's still so much time so that you can change your subjects or can choose your choose that what you want. So I request them. Okay, so as you tell me about peer pressure, thank you for giving your time. One story of peer pressure. कौन? और भाई? अरे कैसे है? बढ़िया यार। तू क्या कर रहा है? बस यार पढ़ाई। केमिस्ट्री? हाँ यार। पर तू तो कर रहा कॉमर्स में जाएगा। अरे यार बस मत पूछ यार। बता। बस यार तुझे जैसे पता ही होगा, दोस्तों वोस्तों के चक्कर में मैं तो सोचा था कॉमर्स लेनी है। सारे दोस्तों ने फोर्स किया कि हम जा रहे हैं, तो अब उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। लेकिन अब पता लगा कि पर बस तुझे तो मैथ्स पसंद थी। मैथ्स पसंद थी, पर फिर वही है ना कि अब साइंस में भी मैथ्स थी, कॉमर्स में भी मैथ्स थी। अब लेकिन सारे दोस्त कहते साइंस ले ले साइंस ले ले, तो मैंने भी सोचा यार दोस्तों के साथ चले जाते हैं। और उस टाइम प्रेशर आ गया दिमाग पे, घर वालों ने भी कहा साइंस ले। तो बस बोलते बोलते मैंने खुद तो कुछ सोचा नहीं और साइंस ले ली। फिर तो अब बस साइंस में रहेगा। हाँ यार, और क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब पता लगा यार पीयर प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है। अगर तब मैं अपने दिमाग से काम लेता तो फिर आज थोड़े ज़्यादा अच्छा स्कोर रहता मेरा। लेकिन अभी चल ठीक है, कोई नहीं, बस तू भी ट्राई कर सकता है। चल देखते हैं। चल ठीक है।
ओके मुझे काम था, मैं बाद में आता हूँ। ओके Peer pressure is unavoidable. But that's not the end. Just like how every locked door has a key, every problem has a solution. तो अंकल, जैसा आपको पता है पीयर प्रेशर के बारे में, आजकल ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है हम इसे कैसे रोक सकते हैं? पीयर प्रेशर, देखो जो आजकल जो बच्चों को पीयर प्रेशर हो रहा है, उनके पेरेंट्स को, यारों को, यार दोस्तों को, उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों, आप जो भी कदम उठाना है आपने पढ़ने के बारे में, चाहे अपना कैरियर बनाने के बारे में, जिस तरह से आपको स्टेप उठाने हैं उनको बड़े सोच समझ कर उठाना चाहिए। और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे आपको पढ़ने चाहिए या किसी एक दूसरे से, यार दोस्तों से पूछने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो उसके डिसएडवांटेज होंगे, उसके जो नुकसान होंगे वो भी पता चलेगा, और जो उसके फ़ायदे होंगे वो भी पता चलेगा। तो अगर ये सब नहीं आप पूछेंगे तो आपको या तो संगति गलत मिल जाएगी, आपको आपकी जो कंपनी होगी वो गलत मिल जाएगी, और या फिर आपके माइंड में कुछ इस तरह से टेंशन होगी कि आप कुछ गलत कदम उठाने के लिए आप प्रेरित होंगे उससे। तो ये सारी चीज़ें आपको पीयर प्रेशर से दूर रहना चाहिए, और अपने यार दोस्त पेरेंट्स से पूछते भी रहना चाहिए खुद भी कि भी इस सब्जेक्ट के बारे में या इस आगे की लाइन के बारे में किस तरह से हमें करना चाहिए, या फिर पीयर प्रेशर के बारे में। तो आपको क्या लगता है हम गलत संगति के लोगों से हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने बच्चों को? अपने बच्चों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये तो ये पेरेंट्स से ही चलता है। पेरेंट्स और बच्चों में आपस में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, कोऑपरेशन भी रहना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, और पेरेंट्स को बड़े प्यार के साथ बच्चों से के साथ पेश आना चाहिए। बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। बच्चों से ये नहीं कि मारना है, डांटना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उनको बड़े प्यार से उसको समझाएं, उसको कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है, इसको इस तरह से नहीं, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना। मतलब गुस्सा तो बिल्कुल दिखाना ही नहीं चाहिए, खासतौर से पेरेंट्स को। और बच्चों को भी उसी तरह से समझना चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। जी। और जहाँ भी आपको जाने के लिए कहें या ना जाने के लिए, आपके मन में तो ये आएगा कि ये मना क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पूछो कि क्यों मना कर रहे हो हमको, किस लिए। ये इस तरह की बातें होनी चाहिए आपस में, कोऑपरेशन से। ये इस तरह से हम मेन तो दूर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में कोऑर्डिनेशन देना चाहिए। चलिए, थैंक यू टाइम देने के लिए।